السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر۔ یہ آپ کا میک اپ کلاس ہے، یعنی کہ جو آپ نے پڑھا ہوا ہے تقریباً مکمل ہم نے کر لیا ہے۔ جو آپ کا سلیبس ہے، سلیبس آپ کا ہوپ فلی ہوگا 139 سے 176 آیات تک سورہ بقرہ۔ کلیئر ہے جی؟ سر کون سی آیت سے اسٹارٹنگ ہے؟ یہ آیا نمبر 139 139 سے 176 176 تک، ٹھیک ہے جی؟ اوکے سر۔ یہ آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا، تو اس لیے آج اس کلاس پہ ہم تھوڑا سا سلیبس اپنا ریوائز کریں گے۔ کچھ حصہ اگلے ہفتے ریوائز ہوگا، اس میں گرامیٹیکل پورشن کو بھی اہمیت دی جائے گی تاکہ آپ سے جب وائوا لیا جائے تو اس میں گرامر بھی جو ہے انوالو ہو۔ تو یہ آیا نمبر 139 سے ہم کچھ آیات پڑھیں گے، 10-11 آیات انشاءاللہ آغاز سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے آیات آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ جو ہے وہ سب سے لمبی سورت ہے۔ یہ سورہ بقرہ پہلے پارے کے آخر میں جو آپ نے سبق پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ یہودیوں کا ذکر کیا ہے، عیسائیوں کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر یہودیوں کا، اور اس میں یہ صبغۃ اللہ والی آیت آپ نے پڑھی تھی۔ وہ جو استباغ بیپتسمہ یا جسے بیپٹزم کہتے ہیں عیسائیت میں، کہ بچے کو رنگ لگانا، اس کو کسی حوض میں ڈال کر باہر نکالنا، تو اس کو سمجھنا کہ یہ اب عیسائی بن گیا ہے اور اس پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا رنگ ایسے نہیں چڑھتا، بلکہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی مثال دے کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ بتائیے، اگر کوئی آدمی ایم اے میں داخلہ لیتا ہے تو جس دن داخلہ لیتا ہے اس دن اس کا ایم اے ہو جاتا ہے؟ نو سر۔ جی کلاس بتائیں۔ اگر کوئی آدمی ایم اے میں داخلہ لے لے، شام کو گھر واپس آئے داخلہ لے کر، اس کا داخلہ تو ہو جائے نو ڈاؤٹ، لیکن یہ داخلہ لے کر وہ گھر آیا کہتے ہیں میرا ایم اے ہو گیا ہے، تو بتائیے وہ درست کہہ رہا ہے؟ جی کلاس۔ جی کلاس کو آواز آ رہی ہے جی؟ سر ابھی ہے، یہ پہلے نہیں آ رہی۔ میں نے پوچھا یہ کہ اگر ایک آدمی ایم اے میں داخلہ لے لے اور گھر جا کے بتایا جی آج میرا داخلہ ہو گیا، میں نے ایم اے کر لیا ہے، اس کی بات درست ہوگی؟ نو نو سر۔ سر۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایم اے کر لیا ہے کہ لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سر ایم اے کرنا۔ ہاں جی، پڑھنا پڑے گا۔ اچھا بالکل ایسے ہی کہ آپ کہہ رہے ہیں پڑھنا پڑے گا، وہ 2 سال ہو جائے گا، کلاسز لے گا، اسائنمنٹس بنائے گا، پھر اس کے بعد سیمسٹر وائز سیمسٹر 1 2 3 4 اس طرح کے سیمسٹر سے گزرے گا، پھر وہ بڑے مسائل سے گزرنے کے بعد، فیسیں بھرنے کے بعد 2 سال کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آج مجھے ڈگری ملی ہے۔ اسی طرح ہے ہمارا، ہم میں سے اکثر لوگ نا وہ اس گمان میں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے جی، کلمہ پڑھ لیا ہے، داخلہ ہمارا ہو چکا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے داخلہ ہونا اور بات ہے، ڈگری ملنا اور بات ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ، یہ تمہارا داخلہ ہو گیا، عاملوا الصالحات یہ تمہاری اسائنمنٹس ہیں۔ تو عاملوا الصالحات پہ بتائیے ہم عمل کر رہے ہیں بصیرت سوسائٹی؟ بہت ریئر سر۔ تو اس کا مطلب ہے عامل الصالحات ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ان کا میزبان ہوگا۔ اللہ ول بی دا ہوسٹ اینڈ دے ول بی دا گیسٹس، تو اللہ تعالیٰ ان کا ہوسٹ ہوگا، یہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ تو اس لیے بعض ذہن میں رکھ لیں، عیسائیوں یہودیوں کو بھی یہ مسئلہ تھا، وہ کہتے تھے بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو یہ بالکل ایسے ایم اے والے پی اے والے کے بارے میں جو داخلہ لے کر سمجھے کہ میرا پی اے ہو گیا، ٹھیک ہے جی؟ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی مثال کی؟ جی بہت اچھی طرح سر۔ چلے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ فرماتا ہے آگے کہ اگر یہ آپ سے لڑتے ہیں اتحاجوننا فی اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ونحن لہ مخلصون، اور ہم اللہ کے لیے خالص ہیں۔
अब ये इन्ना इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब व अलस्बात कानू हूदन व नसारा, ये भी बड़ी पुरानी एक एडवर्टाइजमेंट का तरीकेकार है कि जब आप एडवर्टाइज करते हैं तो आप यानी कि देखते हैं लोगों को कि वो ना किसी बड़े आदमी की पिक्चर लगा देते हैं अपने शॉप पर या अपने आउटलेट पर, और या अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं बड़े लोगों के साथ, और गुमान ये शो ये करते हैं कि जी ये भी यहाँ पर आए थे और हमें इनकी आशीर्वाद हासिल है और हमें इनका भी ताउन हासिल है। तो ऐसे ही है जी। जी क्लास। जी सर बिल्कुल। और यहाँ पर देखें इब्राहिम का जिक्र है, इस्माइल का जिक्र है, इसहाक याकूब और उनकी औलाद का जिक्र है। तो ये बहुत बड़े आदमी गुजरे हैं यहूदियत में भी, ईसाइयत में भी, बल्कि हिस्ट्री में के अंदर, जो हिस्ट्री के अंदर बड़े पर्सनैलिटीज का नाम लिया जाए तो उसमें अब्राहम की है, इस्माइल की है, आइजक यानी इसहाक की है, जैकब यानी याकूब की है, इस तरह जोसेफ यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की। अब यहूदी कहते थे कि ये हमारे हैं, ईसाई कहते थे ये हमारे हैं। साफ ज़ाहिर है यहूदी अगर कह दें ये हमारे हैं, ईसाई कह दें हमारे हैं, तो साफ ज़ाहिर उनके तो नहीं बनते ना, उनके तो तब बनेंगे जब उनके अकायद उनके मुताबिक होंगे। इब्राहिम का अकीदा और है, यहूदियों का अकीदा और है, ईसाइयों का अकीदा और है। तो लिहाजा अल्लाह फरमाता है कि तुम आलम बिल्लाह, तुम ज्यादा जानते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज्यादा जानता है। अल्लाह को ज्यादा पता है कि ये तमाम लोग हनीफ थे, मुस्लिमन थे। तुम हनीफ भी नहीं हो, तुमने कई खुदा बना लिए हैं, तुमने तस्लीस का अकीदा बना लिया है। कोई उज़ैर को अल्लाह का बेटा कह रहा है अलैहिस्सलाम, कोई ईसा को अल्लाह का बेटा कह रहा है अलैहिस्सलाम, कोई मरियम को ईसा अल्लाह ताला की बीवी नौजुबिल्लाह साबित कर रहा है। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइलीना की अकायद से बरी है। और आपको मालूम है कि इस वक्त कई काम हम भी ऐसे कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल उस बरी हैं और अल्लाह ताला के नबी उससे बिल्कुल बेजार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना मिन उम्मती अक़वाम, मेरी उम्मत में से बाज लोग ऐसे होंगे जो जना को, रेशम को और ये जो गाजे और बाजे होते हैं और शराब को हलाल कर लेंगे। यानी कि चीजें कुछ और नाम रख के ना इनको उसके जामा पहना देंगे। जना का कोई नाम और रख लेंगे, शराब का नाम कोई और रख लेंगे, रेशम का नाम कोई और रख लेंगे, ढोल बाजे का नाम कोई और रख लेंगे। और आपको पता है हमारे यहाँ एक दौर में, इस दौर में बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि बड़ा बेहुदा किस्म का लफ्ज हमने इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नाम है एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट के अंदर ये सारी चीजें आ रही है। एग्री जी? जी क्लास। जी सर। जी सर। बाकी क्लास नहीं बोल रही जी, बाकी क्लास सो तो नहीं गई? और एंटरटेनमेंट को हमने बोला कि अब लड़के लड़के डांस करें, ये भी एंटरटेनमेंट है, ठीक है जी। और अगर कोई आदमी जिसे आप कहते हैं दूसरे जो लव अफेयर्स हमारे यहाँ चलाए जाते हैं वो करे तो वो भी कहते हैं वो एंटरटेनमेंट है, ये जिंदगी है जी, ये जिंदगी जवानी की है, जवानी दीवानी होती है, और ये और वो है, जवानी में जुनून होता है। मैं हैरान ही हो रहा था कि जुनून वगैरह की कैफियत तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने नफी की है। कुरान मजीद के अंदर फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक। यहाँ पर क्या हमारे मिसरे क्या बने हुए हैं कि जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, है जी। सुना हुआ जी आपने मिसरा? जी सर। अब जुनून से मिलती है आजादी, अल्लाह के नबी से नफी कर रहा है अल्लाह ताला के मेरे नबी को जुनून नहीं है। जुनून एक बीमारी है, वो मेरे नबी को कैसे हो सकती है? और इश्क की जो बीमारी है वो भी पूरे कुरान मजीद में या हदीस के ज़हीने में कहीं नहीं मिलती। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने नबी अलैहिस्सलाम को अपना बनाएं, कि कम से कम ऐसे काम करें कि नबी अलैहिस्सलाम हम पे फख्र कर सकें जी हमारी मेरी उम्मती है। फरमाया तिलका उम्मत उनका सलत, ये एक उम्मत है जो गुजर गई, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, और उनके लिए वो है जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए वो है जो तुम कमाओगे। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा उस चीज के बारे में जो ये लोग करते रहे। यानी कि इसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि हर आदमी ना अपना जिम्मेदार है, बजाय दूसरों का सोचने के पहले वो अपने गिरबान में झांके और अपने आप को दुरुस्त करे। वो जब अपने आप को दुरुस्त कर लेगा तो ठीक है, वो अपने साथ वालों का भला करे, लेकिन जो लोग फौत हो चुके हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनका तो भला नहीं कर सकता ना, वो ना उनको दुरुस्त कर सकता है। तो इसका मतलब है कि आदमी अपने ऊपर तवज्जो दे, अपनी सोसाइटी पर तवज्जो दे, जो कमाएगा वो अपना अल्लाह ताला के यहाँ पालेगा। आगे आपने पता है दूसरा सवारा शुरू होता है तो उसका ताल्लुक है किबले की तरफ।
तो आपको पता है पहले किबला बैतुल मक़दस था, फिर अल्लाह ताला ने उसको तब्दील कर दिया। इससे नस्ख साबित होता है कि अल्लाह ताला मर्जी है उसकी, वो अपने हुक्म को उसका मनसूख करके नया हुक्म जारी कर दे। तो ये बुखारी के अंदर भी हदीसें मौजूद है कि 16 या 17 माह तक नबी अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। ये बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है। और फिर आपको बैतुल्लाह की तरफ मुंह करने का हुक्म हुआ। ये 7252 सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। अब यहाँ पर इतराज क्या है? यहूदियों ने इतराज किया, मुनाफिकों ने, मुशरिकीन। तो कहते हैं अगर पहला किबला दुरुस्त है तो उसे बदलने की क्या जरूरत है, और अगर ये दुरुस्त है तो बैतुल मक़दस की बिला क्यों रहा है दोनों तरफ से? यानी कि पहला किबला दुरुस्त था तो इसको बदला क्यों किया है, और अगर ये दुरुस्त है तो वो बैतुल मक़दस क्यों किबला बना रहा है? तो फरमाया, अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक और मग़रिब की कोई हैसियत नहीं है। मशरिक एक सत्य है, डायरेक्शन है, मग़रिब भी एक सत्य और डायरेक्शन है। असल चीज क्या है? असल चीज जिस तरह वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। फरमाया देखिए, ये नहीं है कि तुम किबला की तरफ मुंह कर लो, दाएं तरफ कर लो, बाएं तरफ कर लो। देखिए तो ये है कि तुम अल्लाह ताला की बात मानो और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की फरमाबरदारी करो। सूरह बकरा की आयत नंबर 177 जब आप पहुंचे वहां भी यही आयत बयान हुई है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि। इसका मतलब क्या हुआ कि इस्लाम एक प्रैक्टिकल दीन है। इसके अंदर आमलू दाखिला है और आमिलु स्वालिहाती आपके असाइनमेंट्स हैं, आपके क्विज़ेस हैं, आपके टेस्ट हैं, और आपके वो जो स्पेसिफाइड होते हैं सेमेस्टर 1 के टेस्ट 2 3 4, उसके बाद जब आप सारे टेस्टों से पास हो जाते हैं, असाइनमेंटों से पास हो जाते हैं, क्विज आप क्लियर कर लेते हैं, तो फिर जाके आपको यूनिवर्सिटी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट नवाजती है और उसके बाद आपको डिग्री अदा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यह तसल्ली दी और फरमाया व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, हमने तुम्हें एक आदिल उम्मत बनाया। वसत किसको कहते हैं? दरमियान में। दरमियान में हमारे ना इफरात और तफरीत नहीं है, ना तो हम किसी नबी को अल्लाह मानते हैं, ना हम किसी नबी का इनकार करते हैं। वाज़ेह होगी जी बात। इफरात और तफरीत का फर्क किसी को मालूम होता है? जी जी सर, मतलब कभी कमी और कहीं ज्यादती करना। अफराद इफरात और तफरीत का मतलब होता है किसी को ना नीचे ले आना। जैसे 50 का नोट हो तो आपका ये 40 का है, तो ये तफरीत है। और इफराद होता है 50 का हो तो आपका ये 60 का है, तो ये इफरात है। वाज़ेह हो गया जी। जी किसी चीज की वैल्यू कम करना तफरीत है और किसी चीज की वैल्यू बढ़ा देना इफरात है। इसी से इफरात ज़र इन्फ्लेशन जो आपने इकोनॉमी की क्लास सुनी होगी, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइसेस ऊपर जा रही है, ज्यादा हो रही है। 50 का, अब आपको पता है प्याज क्या भाव मिल रहा है? 220 रुपए केजी सर। बिल्कुल आपने सही रेट बताया, 220। अब यानी कि ये प्याज इन्फ्लेशन में है, पहले 50 का था, फिर 60 का हुआ, 70 का हुआ, 80 का, अब 220 तक पहुंच गई। दिस इज नोन एज इन्फ्लेशन। तो ईसाई जो है ना वो इफरात का शिकार है कि वो ईसा को अल्लाह का बेटा मानी जा रहे हैं, कोई मरियम को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की बीवी मान रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। ये इफरात है, यानी कि आदमी को ऊपर ले जाना। तफरीद क्या है कि नबियों को बुरा भला कहना, बल्कि नबियों को नाउज़ुबिल्लाह कतल कर देना। तो ये काम यहूदियों ने किया। तो अल्लाह फरमाता है कि ये जो उम्मत है ये वसत है। ये ना किसी नबी को, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तुत्रूनी कमा अतरती नसारा अलमसीह इब्न मरियम, मुझे इस तरह ना बढ़ा देना, मुझे इस तरह ना चढ़ा देना जिस तरह ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम की इज्जत की कि उन्होंने उनको अल्लाह का बेटा ही बना दिया। मैं कौन हूँ? इन्नी अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। तो फरमाया कि ये तुम्हारे यहाँ ना सख्ती है ना नरमी है। यहूदियों वाली सख्ती भी नहीं है, नसारा वाली नरमी भी नहीं है, बल्कि अदल है, एक इंसाफ है, तुम सबसे बेहतर हो। और ये जो कज़ालिका, इस तरह ही हमने तुम्हारे पास तमाम चीजें पूरी हैं और तुम्हारे मुखालफों के पास नाक़िस है। तुम सारे अंबिया को मानते हो, वो किसी को मानते किसी को नहीं मानते। और दूसरा ये कि तुम्हारा किबला काबा है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक़्त से मुकर्रर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबके पेशवा हैं, यहूदी भी उनको मानते हैं, ईसाई भी उनको मानते हैं, लेकिन इनकी अपने जो ज़ाती किबले बात की बात है। लिहाजा हमने तुम्हें हर काम में अफजल उम्मत बना दिया है। तुम्हारा काम क्या बनता है? अफजल उम्मत कब बनोगे? जब तुम तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जब तुम नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से मना करोगे। अब आप बताइए, हम नेकी का हुक्म और बुराई से मना करेंगे कि हम कर रहे हैं काम? नो सर। हमारे यहाँ हुकूमती लेवल पे कोई ये काम मौजूद नहीं है। और आपको ये मालूम है, आप कुछ आप में से सावजर है बच्चों वाले भी होंगे और कुछ प्रोसेस से गुजरे हैं। आपका बच्चा जब
घर में कॉपी लेकर आता है ना तो वो रेड साइन से भरी होती है, टीचर ना गोल दायरे लगाता है रेड साइन से, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, ये इसके स्पेलिंग ठीक नहीं है। तो बताइए टीचर का ये काम बिल्कुल ऐसा ही नहीं है जैसे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। यानी कि आप भी आदमी को रोककर, अपनी बहन को, भाई को, साथी को रोककर कहेंगे, गोल दायरा लगाए कहेंगे ये काम तुम्हारा शरीयत के मुताबिक नहीं, वो शरीयत के मुताबिक नहीं। हाँ करना अच्छे तरीके से है, तो ये चीज में पाबंदी है। हमारे यहाँ मेजोरिटी की अथॉरिटी क्या है, उन्होंने क्या कहा, जो मेजोरिटी करे वो दुरुस्त है, और जो मेजोरिटी कर रही है बिल्कुल साहिब है, उसमें कोई किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। बल्कि ये जो शाज कॉल है और ये एक्सेप्शन है, ये बातें गलत है। आप एक छोटी सी मिसाल समझे, लूत अलैहिस्सलाम की कौम क्या किया करती थी कि वो लड़कों से मैरिज की कायल थी, मालूम है आपको जी? यस सर। जी अच्छा, अब वो लूत अलैहिस्सलाम ने जो उनको मना किया है तो दुरुस्त किया है लूत अलैहिस्सलाम ने। जी सर। तो हमारी सोसाइटी में क्या है, हमारी सोसाइटी तो ये कहती है जो जहाँ लगा वहां लगा रहने दो। मैं पिछली क्लास में पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने एग्जांपल दी थी, बात चीजें ना हो वो चीज आपकी किसी काम की नहीं रहती। आपके दफ्तर में एक मुलाजिम है, वो बहुत आपके लिए लाजमी है, जरूरी है, मैंडेटरी है, और आपको उसकी बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि बहुत वो चलता पुर्जा है, बड़ी उसके अंदर सलाहियत मौजूद है। आप बताइए मर जाए, खत्म हो जाए, उसकी रूह निकल जाए, तो रूह निकलने के बाद आपके किस काम का रहता है वो? किसी काम का नहीं रहेगा सर। मतलब आप उसको डेलीगेशन के तौर पे भेजेंगे बाहर के मुल्कों में, जाओ भी आप बाहर फिराओ जाके, या आप उसको टूर्स के लिए लेकर जाएंगे, या आप कहेंगे जी फौत तो हो गया तो कोई बात नहीं कल मीटिंग पे आ जाना, कहेंगे आप उसको? नो सर। क्या चीज खत्म हुई है उसकी कि उसकी वैल्यू तब्दील होगी और अब वो एक आपके किसी काम का नहीं रहा? कौन सी चीज निकली है? रूह बताइए, अगर उम्मत मुस्लिमा में से ये रूह निकल जाए ना नेकी का हुक्म देने की और बुराई से मना करने की, तो ये हुक्म उम्मत भी फारिग है, इसका भी कोई काम नहीं है। बच्चों का गुब्बारा वो तब ऊपर को जाता है जब उसके अंदर हवा भरी हुई हो, मोटरसाइकिल का टायर तब चलता है जब उसके अंदर हवा भर के चले, मोटरसाइकिल और ये मोबाइल तब काम करता है जब इसके अंदर बैलेंस मौजूद। जब इन पे ये चीजें मौजूद नहीं, मोबाइल किसी काम का नहीं है, टायर किसी काम का नहीं है, और गुब्बारा किसी काम का नहीं है, बैलून किसी काम का नहीं है। तो फरमाया हमने तुम्हें उम्मत वसत बताया है, बनाया है, जिस तरह सूरह आले इमरान में अल्लाह आयत नंबर 110 को फरमाया ना, कुन तुम खैर उम्मत तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो ये आपसे काइंडली गुजारिश है, तो इस चीज को ना जरूर फैलाएं कि नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, ये करेंगे तब जाके हम खैर उम्मा बनेंगे, वरना खैर उम्मा बेहतरीन उम्मत नहीं बन सकते। और मैं वमा जअलनल क़िबलत अल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा, फरमाया हमने ये काम इसलिए किया है, ये जो तहवील किबला इसलिए किया है कि कुरैश को कौन सा किबला पसंद था, बैतुल्लाह का, और अहले किताब को कौन सा पसंद था, बैतुल मक़दस। जब बैतुल मक़दस को किबला बनाए रखा, उसमें कुरैश की आजमाइश थी और कुरैश के मानने वाले जो असातिर उनकी आजमाइश हुई, और जब बैतुल्लाह को मुकर्रर किया तो फिर अहले किताब की आजमाइश हुई कि ये उसको छोड़कर अल्लाह ताला के बनाए हुए अगले किबले की तरफ आते हैं कि नहीं आते। इसका मतलब है कि ये जो चीज अल्लाह की वही, ये फरमाया कि जो नबी की पैरवी कौन करता है मिम्मन कलिबुल, और अपने पाँव पे कौन फिर जाता है, वही कानत लकबीरतन, और फरमाया कि ये जो चीज है ना ये बड़ी मुश्किल थी, बड़ी भारी थी, लाल्लज़ीना हदल्लाहु, मगर उन लोगों पर जो अल्लाह की हदायत में थे। अच्छा, अब ये भी बात याद रखिए कि वो जो पहला, इस आयत से ये पता चल रहा है कि जो पहला किबला था और जिसकी तरफ रुख किया करते थे वो भी अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है, लेकिन पुराने भी में उसका जिक्र कहीं मौजूद नहीं। इसका मतलब ये मानना पड़ेगा कि आप पर कुरान के अलावा भी अहकामात नाजिल होते थे, लिहाजा हदीस की सुन्नत को मानना भी ऐसे ही है जिस तरह आप कुरान मजीद को मान रहे हैं, क्योंकि कुरान मजीद की तशरीह और इसकी तौज़ी और इसकी एक्सप्लेनेशन किसने की है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक्सप्लेन करेंगे तो आप कुरान को ही एक्सप्लेन करेंगे, और कुरान मजीद की एक्सप्लेनेशन ना हो तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। आप बताइए नमाज किस लफ्ज़ से शुरू होती है? अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर से शुरू होती है जी। हाँ जी, जी तो अल्लाह अकबर का लफ्ज़ है कुरान मजीद में कहीं? नो सर। नहीं अब अल्लाह अकबर पूरे कुरान मजीद में नहीं है, तो फिर कहाँ से लिया आपने अल्लाह अकबर? हदीस से
20 मतलब है कि हदीस भी वैसी हुज्जत और दलील है, सुन्नत वैसी हुज्जत और दलील है जिस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे उतरने वाला कुरान वो हुज्जत और दलील है। तो फरमाया कि वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम, जो तुमने नमाज़ें 16-17 महीने पढ़ी हैं बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके, अल्लाह उनको ज़ाया नहीं करेगा। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई, अल्लाह फरमाता है कि हमने आपका चेहरा देखा आसमान की तरफ उठते हुए। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पसंद था कि ये बैतुल्लाह ही किबला बन जाए, जिसकी दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी की थी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको बनाया भी था। कि आपने पहले इस बारी से पहले पढ़ा हुआ है, इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। ये अनीसा का मोबाइल पर खुला हुआ है मुस्तकिलन, क्या वजह है जी? खैरियत तो है? सर वो गलती से हो गया, सॉरी। ध्यान रखा करें इस चीज का। तो फरमाया कि आपका चेहरा हम देखते हैं आसमान की तरफ उठते हुए। तो आपके नबी अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह का किबला होना बहुत पसंद था। और वाज़ेह है कि बैतुल मक़दस जो है ना वो शाम में है और ये मदीना से ना शमाल की तरफ है। आपको पता है वो जो डायरेक्शंस तो वही होती हैं, जो डायरेक्शन फिक्स होती हैं। आप खड़े हो जाएं तो डायरेक्शन फिक्स है, दाएं तरफ कारी साहब का घर है, बाएं तरफ मौलाना साहब का घर है, पीछे कुरैशी साहब का घर है, बिल्कुल ऐसे ही। तो बैतुल मक़दस शाम पे है, मदीना की शमाल की तरफ, और बैतुल्लाह उसके बिल्कुल मुखालिफ जनूब की तरफ है। तो ये अल्लाह ताला ने डायरेक्शन बदली। तो बुखारी के अंदर जो हदीस मौजूद है किताब तफसीर में, बाब वाला तईदल्लज़ीना में, वो आयत नंबर हदीस नंबर है 4490। उसके अंदर ये बात मौजूद है कि लोग कुबा की मस्जिद में सुबह की नमाज पढ़ रहे थे। उनके पास एक आदमी आया, उसने कहा कि आज रात की आयत नाज़िल हुई है, तो लिहाजा काबे की तरफ मुंह कर लो और बैतुल मक़दस की तरफ मुंह कर लो। तो उनका रुख शाम की तरफ था, यानी कि शमाल की तरफ था, तो उन्होंने उसको जनूब की तरफ कर लिया। फिर फरमाया फलन वल्ली अन्ना का किबला तर्ज़ा, हमने किबला वो बना दिया है जिसको आप पसंद करते हैं और जिसके लिए आपका दिल राजी है। फवल्ली वजह का शतर मस्जिद हराम, अपना चेहरा जो है वो मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। वही सुमा कुंतुम, और जहाँ कहीं भी हो, वजह फवल्लु वजूहकुम शतरा, तो इसकी तरफ आप मुंह कर लीजिए। वही नल्लज़ीना उतुल किताब, और बेशक वो लोग जो कि किताब जिनको दी गई है, अहले किताब यहूद व नसारा, लयालमूना अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम, वो जानते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हक है, कुरान मजीद हक है, या उनकी ज़मीन नबी अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है, नबी अलैहिस्सलाम हक है, या ये अल्लाह का हुक्म हक है। तो ये तमाम चीजें इसके अंदर शामिल है कि इनको पता है, इनको इल्म है, नबी का भी पता है और इनके भी पता है कि इनका किबला मस्जिद हराम होगा। ये भी तौरात और बाइबल के अंदर मौजूद है कि जब वो आखिरी नबी आएगा तो उसका किबला मस्जिद हराम होगा। हम रिसर्च कर रहे थे अपना इस ना यहूदियत के बारे में, तो ये मालूम हुआ कि जो उनका हौली होती हौली सबसे मुतबर्रक मुकाम है बैतुल मक़दस में। उसके अंदर जहाँ पर वो यहूदी कुर्बानी करते हैं ना, तो वो कुर्बानी उस वक्त में करते हैं सिर्फ बैतुल्लाह है, ये काबा है। यहाँ तक तो वाज़ेह तौर पे बात हो। ये आज भी मेटीरियली बात मौजूद है। अगर आपको बैतुल मक़दस जाने का इत्तेफाक हो तो वहां आप देख सकते हैं कि कुर्बानी जो आल्टर है, आल्टर का मतलब होता है कुर्बान गाह, तो जो यहूदियों की आल्टर है जिसे हॉली ऑफ द हॉलीज कहा जाता है, जहाँ हर आदमी दाखिल नहीं हो सकता, तो वहां पर भी जब वो कुर्बानी करते हैं तो उसका रुख वो माने या ना माने, रुख उधर वो किबले की तरफ ही होता है, जो आज हमारा किबला है बैतुल। इसलिए कि उनकी किताबों के अंदर ये चीजें मौजूद हैं कि जब आखिरी नबी आएगा, एक तो ये भी मौजूद है कि आखिरी नबी आएगा, और ये भी मौजूद है कि आखिरी नबी का किबला जो है वो बैतुल हराम होगा, इस्लाम ने बनाया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदियत में भी मुकाम हासिल है, ईसाइयत में भी मुकाम हासिल है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो फरमाया वालैना तईदल्लज़ीना उतुल किताब बिकुल्ली आयतिन मा तबियु क़िबलतक, अगर आप इनके पास सारी आयात ले आए, सारी निशानियां ले आए, तो फिर भी आपके किबले को नहीं माने। ये किन लोगों की बात है? जो लोग दलाइल आ जाने के बाद, सारी बात वाज़ेह हो जाने के बाद भी नहीं मानते। तो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इसलिए फरमाया कि लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पे दरोगा नहीं है। 26वें बारे फरमाया मा अंता अलैहिम बिजब्बार, आप इन पर सख्ती ना कीजिए, सख्त में आपने इनको जबरदस्ती तो नहीं लगाना। फिर अल्लाह ने फरमाया ला तुसअलून अस्हाबिल जहीम, अगर ये आपकी बात नहीं मानते, जहन्नमी बन जाते हैं, तो अल्लाह आपसे सवाल नहीं करेगा। आपका काम है पहुंचा देना, अब पहुंचाने के बाद आपने अपना काम पूरा कर दिया। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, आपका काम है इनको बात पहुंचा देना, तो ए रसूल आप इनको सारा कुछ पहुंचा दीजिए। बाकी एक है हदायत का रास्ता दिखाना,
ایک ہدایت پر چلنا، تو ہدایت پہ کون چلتا ہے؟ یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف جانا چاہے گا وہی ہدایت کے راستے پر آئے گا۔ تو فرمایا آپ نے پھر ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی، وما بعضهم بتابع قبلہ، یہ ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے یہود نصارہ کے دشمن ہیں، نصارہ یہودی، اور یہ تمام لوگ کس کے مقابلے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ بتائیے، یہود و نصارہ اتحاد کرتے ہیں کس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ جی مسلمانوں کا مقابلہ، ہاں جی، مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو الکفر ملت واحدہ، پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہودی، آپ کو پتہ ہے یہودیوں کا دن جو ہے نا مقدس دن، وہ سبت یعنی ہفتے کا ہے، عیسائیوں کا اتوار کا ہے۔ آپ دیکھیں آپس میں بھی یہ نہیں ملے ہوئے، اور وہ پہلے اس بارے میں عیسوی میں آپ نے پڑھا تھا کہ لیست وقالت النصارى لیست الیہود ولا شیء وقالت الیہود لیست النصارى لا شیء وهم یتلون الکتاب۔ نصارہ کہتے ہیں عیسائی یہودی غلط ہے، یہودی کہتے ہیں نصارہ غلط ہے۔ تو فرمایا والا یعنی تباہ ہوا من بعد ما جاءک من العلم، اگر آپ کے پاس علم آ جائے، قرآن و سنت آ جائے، اس کے بعد آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ بھی ظالموں میں سے۔ اس آیت میں خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، لیکن اصل خطاب آپ اور ہمیں ہے، یعنی کہ علماء کو ہے، عوام کو ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشوں کی پیروی کرے، ان کی خواہشوں کی پیروی کرے، تو آپ کو پتہ ہے جو خواہش ہے کسی شخص کی بھی، میری، آپ کی، اہل کتاب کی، کیا یہ وہی بن جائے گی؟ جی سر۔ میں دوبارہ سوال دو رہا ہوں، آپ نے شاید سمجھا نہیں۔ میں نے کہا میری خواہش ہو، آپ کی خواہش ہو، جو میں اپنی مرضی سے کوئی بات کروں تو اس کو وہی کا درجہ دیا جا سکتا ہے؟ یہ پوچھا جائے۔ نہیں سر، بالکل بھی نہیں۔ اہل کتاب اپنی خواہش سے فلاں کام کرے، اس کو وہی بنایا جا سکتا ہے؟ وہی تو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی کے بارے میں بڑی سخت شرطیں رکھی ہیں۔ شرطیں رکھے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے رسالت کس کو دینی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ سورہ حاقہ میں فرمایا، آخری رکوع میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ سورہ تحریم کی پہلی آیت آپ پڑھ سکتے ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ تمام آیات کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا نبی اپنی مرضی کا کلام کرے، فرمایا، اور کہے کہ یہ وہی ہے، تو میں دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اپنے نبی کی شارت کو کاٹ دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ ظالم ہیں کہ نہیں؟ جی کلاس، سر آپ کی آواز کٹ گئی تھی۔ میں نے کہا جو آدمی اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے وہ ظالم ہے کہ نہیں، یہ پوچھا گیا۔ یقیناً ظالم ہے۔ یقیناً ظالم ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی وحی چھوڑ دی ہے۔ اور ہمارے پھر ہاں نا وہ ایک شیطان کی پیروی کر رہا ہے نا۔ جی، شیطان کی اور اپنے نفس کی۔ ہمارے ہاں ایک مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی ہے جی، وہ اس نے پڑھا لکھا نہیں، تو اس نے کہا، وہ کسی نے پوچھا اس سے کہ بھی آپ پڑھے لکھے نہیں، آپ نے پڑھا نہ پڑھا ہے؟ تو کہتا ہے میری امی جو ہے مجھے جج کہتی تھی، تو جب اس نے کہہ دیا میں بن گیا، میں نے پڑھنے کی ضرورت نہیں، امی نے مجھے جج کہہ دی ہے بیٹا آپ جج ہو۔ تو بعض اوقات والدہ جج کہتے تو آدمی جج بن جائے گا۔ جی بتائیں جی، آدمی اپنے بچے کو پرائم منسٹر کہہ دے، پرائم منسٹر بن جائے گا، وہ تو یہی ہے نا کہ وہ بنے گا تبھی جب وہ محنت کرے گا۔ تو فرمایا یہ ان کی خواہشیں ہیں، اور اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ بھی ذاتوں میں سے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اہل کتاب کو معلوم ہے۔ اور ایک دوسرا بڑا اہم مسئلہ ہمارے استاد ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اہل کتاب، یہ دیکھیے جہاں پر یہ لفظ اکثر ہے لیعلمون، لام ہے تاکید کا، یقیناً جانتے ہیں۔ اب دیکھیں اہل کتاب یقیناً جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے، نبی علیہ السلام حق ہیں، صحیح اہل کتاب ایماندار بنتے ہیں؟ نو سر۔ نہیں بنتے ایماندار۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مسلمان صرف یہ جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، عمل نہ کرے، تو وہ ایماندار بن جائے گا؟ نو سر۔ ہاں، مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اگر اس کو جانتا ہے تو تین چیزیں اس میں ایڈ کرے، دل سے ایمان لائے، زبان سے تصدیق کرے، اور اس کے بعد اپنے عمل سے اس کی گواہی دے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو آگے بڑھتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی خاتون
हाँ कहे कि वो खाना पकाने को जानती हैं, कोई खातून है जी जो खाना पकाना जानती जी सर। है? अच्छा वो आप वो जी जिनको खाना पकाना आता है वो जरा जवाब दें एक खातून कि आपने खाने में जी अगर चिकन भी डाल लें, तेल भी अच्छा डाल लें, सारा कुछ डाल लें, सिर्फ नमक ना डालें, तो आप मेहमानों को देंगे वो खाना? नो सर। नमक क्या भाव है? नमक 50 रुपए किलो होगा। यानी नमक तो बहुत सस्ता है मेरा ख्याल है, ठीक है जी। काफी। तो आपने देखा कि अगर आपके खाने में हल्का सा एक आधा चम्मच नमक ना हो, आधा चम्मच पड़ता है ज्यादा ज्यादा, ये थोड़ा पौना लगा लें आप, आधा चम्मच वो नहीं है तो खाना बेकार है और आपके मेहमान ना वो चले जाएंगे आपको बातें करते हुए। बताइए अगर आदमी ईमान लाने के बाद नेक अमल नहीं करता, नेक अमल है ही नहीं उसके पल्ले, तो जो कुरान मजीद की आयात हैं अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, ईमान लाने के बाद नेक अमल करना 3 चीजों से मशरूत है। दिल से आप अल्लाह को अल्लाह माने, जुबान से तस्दीक करें और अमल से गवाही दें, फिर जाके आदमी ईमानदार बनता है। और वो जो आप अगर आयात पढ़े ना, और इमाम बहकी रहीमहुल्लाह की किताब है, किताब उनकी किताब का नाम है शुअबुल ईमान, यानी कि ईमान के शोबे, डिपार्टमेंट्स ऑफ ईमान। तो डिपार्टमेंट्स ऑफ ईमान में उन्होंने जिक्र किया 70 से ज्यादा, 80 से कम, इतने डिपार्टमेंट्स हैं जिससे ईमान का ना एक बहुत बड़ा हिस्सा तैयार होता है और कम से कम वो 11 है। इसका मतलब है कि तब आदमी ईमानदार बनता है जब अपने अमल से गवाही दे। तो फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिनको हमने किताब दी है, यारिफूनहु, वो पहचानते हैं इसको, इसको पहचानते हैं नबी अलैहिस्सलाम को, कमा यारिफून अबनाहुम, जिस तरह वो अपने बेटों को पहचानते हैं। अब बताइए बेटों को पहचानता है आदमी कि नहीं जी? आदमी अपने बेटे को पहचानता है ना कि मेरा ही बेटा है। जी बिल्कुल सर। मैं ये इतना पहचानते हैं, इसके बावजूद ईमानदार नहीं बन रहे। ईमानदार तब बनेंगे जब नबी अलैहिस्सलाम की बात मानेंगे। और मैं वइन्ना फरीक़म मिनहुम, इनमें से एक गिरोह, इनके अहबार का, इनके रुहबान का, इनके उलमा का, इनके दरवेशों का और इनके रबियों का, जो अपनी कौम को मजहबी दहशतगर्दी के जरिए, एक होती मजहबी दहशतगर्दी कि भाई मैंने जो कह दिया बस वही है, मजहब के लोग ये कहते रहते हैं कि जी जो हमने कह दिया बस ये अल्लाह ताला की नौज़ुबिल्लाह हुक्म है। तो ये ऐसी गिरोह है कि जो ये हक को छुपाते हैं और ये जानते हैं हक को छुपाते हैं, और इनको पता है कि हक को छुपाने की सजा बड़ी सख्त है, लेकिन ये हक को छुपाते हैं और ये जानते हैं। और मैं हक आपके रब की तरफ से है, फला तकूनन्ना मिनल मुम्तरीन, तो आप शक करने वालों में से ना हो जाए। अच्छा अगली ये जितनी भी आयात आपके सामने तकरीबन सारी वो तहवील किबला की है, रेपिटेशन है, लिहाजा इसको हम स्किप करते हैं और हम आते हैं यहाँ पर। अल्लाह फरमाता है कि आपने फला तख्शऊ वख्शऊनी, आपने अहले किताब से नहीं डरना, काफिरों मुशरिकों से नहीं डरना। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला आपके साथ है। अल्लाह ताला किसके साथ है? बताइए जी, अल्लाह ताला किसके साथ है? सबर करने वालों के, ईमान ये हाँ वालों जी, के। ये बात ज़हन में रख लें कि आजकल जो मादियत का दौर है, हम तमाम लोग मादियत का शिकार है। हमें ये बात भूल गई है कि मायत, अल्लाह ताला की कंपेनियनशिप, कि अल्लाह ताला साथी है, दोस्त है, मददगार है, आपके साथ है, उसकी जो अल्लाह ने कुरान जी में शर्तें बयान की हैं, अल्लाह करे हमें वो समझ आ जाए, वो शर्त पूरी होगी फिर अल्लाह की मैयत आपको मिल जाती है। जब अल्लाह की मैयत मिल जाती है तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक दो मैयतें जिक्र कर, मैयत का मतलब होता है मीम एन या ता। मैयत का मतलब होता है साथ। ये आपने ना शादी कार्डों में लिखा होता है कि आपको दावत दी जाती है बमा अहलो अयाल। बताइए बमा अहलो अयाल का क्या मतलब? सर पूरी वालों के फैमिली, साथ। पूरे तमाम अहल जितने आपके घर में लोग रहते हैं। जी, तो माँ का मतलब अल्लाह फरमाता है मैं साथ हूँ तुम्हारे। किसके साथ हूँ? अल्लाह ताला फरमाता है कि इनको बताए वो दो आदमी हुमा फिल गारी, तो दो आदमी गार में थे, तो फकाल लिसाहिबी ही, उनमें से एक ने अपने साथी से कहा ला तहजन, ना गमज़दा हो, इन्नल्लाह मआना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। नहीं, वो दो आदमी कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, अब देखिए अल्लाह ताला किनके साथ है। बाहर कुरैश के बड़े बड़े जनाब तुर्रम खान और बड़े बड़े काफिर बाहर जो पैसे लेके दौलत लेके नबी अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए बाहर निकले हुए हैं, और अल्लाह फरमा रहा है कि मैं इन जो बेचारे जिनके पास कुछ भी नहीं है, मैं इनके साथ हूँ। अल्लाहु अकबर। वाज़ेह होगी जी एक बात।
जी सर। जी अच्छा दूसरी माहियत देखें, माँ क्या है, फिरौन निकला पीछे फौज लेकर, मूसा अलैहिस्सलाम निकल गए बनी इसराइल को रात को लेकर, जब आगे पहुंचे तो आगे समुंदर था, पीछे फिरौन पहुंच गया। अब आगे समुंदर है, पीछे फिरौन की फौज पूरे तलवारों के साथ, लश्करों के साथ, सलीबों के साथ मौजूद है, जिस पर वो सुपली चढ़ाया करते थे। आपको पता है ये बड़ी सख्त सजा थी, जिसे क्रूसीफिक्शन कहा जाता है। इंग्लिश में क्रूसीफिक्शन का मतलब होता है कि जिंदा आदमी को आप, ये आपको पता है देयर आर 4 साइंस इन मैथमेटिक्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको कहते हैं डी डैश। इसको मुझे ये बताइए जो एडिशन का साइन है वो किस तरह का होता है? एक लाइन ऊपर सीधी और एक लाइन हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल, ऐसे ही है जी, एक हॉरिजेंटल लाइन एक वर्टिकल लाइन, और दरमियान में कट होती है वो, तो ये इसको कहते हैं क्रूसीफिक्शन स्लीप। तो आदमी को ना इस तरह की स्लीप पे लटका कर ना जिंदा उसके जिस्म में मेखें गाड़ी जाती थी, कील डाल दिए जाते थे, और अल्लाह ने इसको जिक्र किया है सूरह तहरीम में। वो जो है ना, इमरात फिरौन इस क़ालत रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नति व नज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही व नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाता है कि वो जो फिरौन की बीवी थी, जब फिरौन ने उस पे सजा दी, उसको उस वक्त सजा लेते हुए क्या कहा था कि या अल्लाह मेरा घर जन्नत में बना दे। अच्छा अब देखिए आगे, पीछे फिरौन है, आगे समुंदर है, बताइए क्या कैफियत होगी? चले हम में से कोई आदमी इस पोजीशन में आ जाए तो क्या मेरी हमारी कैफियत होगी? जी सर हाँ जी, जी सर मतलब आप देखें वो क्या कह रहे हैं भला, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं घबराए, वो कह रहे हैं इन्ना माहिया रब्बी, साथियों ने कहा कि इन्ना लमुदरकून, ए मूसा हमें पकड़वा दिया, हम पकड़े गए, हमें लेके निकला है तो ये तो पकड़ के हमें ले जाएंगे। उन्होंने क्या कहा, इन्ना माहिया रब्बी सयहदीन, याद रखो बेशक मेरा रब मेरे साथ है और वो मुझे यकीनन इस जगह से जरूर निकालेगा। बताइए अल्लाह ने निकाला है कि नहीं उनको? बिल्कुल। तो इसका मतलब है हमें अल्लाह ताला की माहियत कैसे हासिल करनी है? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मास साबिरीन, इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, मैं परहेजगारों के साथ हूँ, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। अल्लाह वलीउल मोमिनीन, अल्लाह ईमान वालों का वली है। अल्लाह वलीउल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत युखरिजुनहुम मिनज़ ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। आपको ये भी मालूम है कि सारी सोसाइटी ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने का वादा किया, तीन आग जलाई गई, उन्होंने यही कहा था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और उनको पता था कि अल्लाह मेरे साथ है। तो अल्लाह ताला किन लोगों के साथ है? और मैं हैरान होता हूँ, एक आयत पढ़ रही कुरान मजीद में, उनके मामा वाली आयत आपको सुना दूं, सूरह कहफ में है कि वो लोग जिनके पास रोजाना खाने के लिए क्या एक चादर होती थी, उसी चादर को धो लेते थे, मतलब वॉशरूम गए उसी चादर को उतारा धो लिया फिर उसी को पहन लिया। बताइए इस आदमी की आजकल सोसाइटी में क्या वैल्यू होगी? हाँ जी, वो रसूल सल्लल्लाहु के सहाबा थे जिनके पास एक चादर हुआ करती थी और वही चादर वो पहन लेते थे, फिर जब वो चादर मैली हो जाती तो उसी चादर को वो धो लेते, दोबारा फिर इस्तेमाल कर लेते। मैंने आपसे ये पूछा था कि इस आदमी की, अगर ऐसा आदमी आज की सोसाइटी में हो तो उसकी क्या वैल्यू हो? कोई वैल्यू नहीं होगी। तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, मा पे लफ्ज पे गौर करें, फरमाया आपने इन लोगों के साथ रहना है। ये जो लोग हैं इनको मैं पसंद करता हूँ, ये अल्लाह ताला के बंदे हैं, ये वो बंदे हैं जिनको अल्लाह ताला ने पसंद किया हुआ है, जिनको अल्लाह ने चुना हुआ है, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अजीज रखता है, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्यार करता है। तो साफ ज़ाहिर है कि हमें भी ना इन बातें में, इन सोचों से निकलना चाहिए। आजकल पैसे की बेस पर रिश्ते तय हो रहे हैं, पैसे की बेस पर ये सारे काम हम कर रहे हैं, तो अगर हम इस तरह लगे रहे तो आगे जो अंजाम है वो कोई खास दुरुस्त नहीं नजर आता। लिहाजा हमें उस पसंदीदगी को समझना है जिसको नबी ने पसंद किया है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमें उसको पसंद करना है जिसको नबी पसंद करता है, और उसको पसंद नहीं करना है जिसको नबी पसंद नहीं करता। कोई कर लेंगे जी आप, ये हम लोग कर सकते हैं ये कि नहीं? जी सर। उसको पसंद करें जिसको नबी पसंद करता है और उसको पसंद ना करें जिसको नबी पसंद नहीं करता। मैंने कहा ये काम कर सकते हैं हम कि नहीं? मैंने ये आपसे सवाल पूछा है कि हमें ये काम करना चाहिए, क्या हम ये काम कर सकते हैं कि जिसको नबी पसंद करे हम भी उसको पसंद करें, जिसको नबी पसंद ना करे हम भी उसको पसंद ना करें? ये सवाल पूछा आपसे।
سر یہ بیسیکلی تو ہمارے دین کا حصہ ہے کہ ہمیں اسی چیز کے اوپر ہی عمل کرنا ہے جو ہمیں دکھایا گیا اور ہمیں بتایا گیا، اور آخرت سے بچاؤ تو ہمارا اسی طرح ممکن ہے کہ ہم پیروی کریں، لیکن اس دنیا میں ان حالات میں رہتے ہوئے ہم اچھا جانتے اچھا سمجھتے ہوئے بھی ہم وہ کام نہیں کر رہے، ہم دنیاوی چسکوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو کوتاہیاں تو ہماری ہی ہیں نا۔ جی کوتاہیاں ضرور ہے، لیکن ہمیں میں نے کہا کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ جی سر بالکل کوشش کرنی چاہیے، اور عمل کرنا جب شروع کر دیتے ہیں، بے شک وہ چیز چھوڑ کے ترک کر کے شروع کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ شروع کر دیتے ہیں اور ایک پیٹرن پر چڑھ جاتے ہیں تو پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گواہی بھی تو یہی دی ہے نا کہ میرے نیک بندوں کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، اور جو کرنا چاہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، تو ہمیں کرنا تو بالکل چاہیے۔ ہاں جی چلے، تو مطلب یہ ہم نا ایک سمے اس کو بھلا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسٹیپ وائز، جیسے آپ ویٹ لفٹنگ کرتا ہے گا آدمی 2 کلو 4 کلو 10 کلو 15 کلو، ہم چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کریں اور اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں کہ ہم اس چیز کو پسند کریں گے جس کو نبی نے پسند کیا ہے، اس چیز کو پسند نہیں کریں گے جس کو نبی نے پسند نہیں کیا، تو انشاءاللہ کافی سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا، اس طرح جس طرح ہم نے آپ میں ایک رسول کو بھیجا، وہ کیا کرتا ہے یتلو علیکم آیاتنا، آپ پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیکم، آپ کا تزکیہ کرتا ہے، آپ کو ایسی باتیں بتاتا ہے جس سے نفس روح کا تزکیہ ہو جائے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَہ، آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور ایسی باتیں بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ صاحب ذرا شریعت کا نہ مجھے پتا تھا، نہ آپ کو پتا تھا، نہ صحابہ کو پتا تھا رضی اللہ عنہ۔ شریعت کا پتہ ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو ہم نے بنایا رسول، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ سورہ انساء میں فرمایا کہ آپ نا اس چیز کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہے۔ تو یہ آج آپ کا اتنا ہی سبق ہے جی، اس کو آپ دہرا لیجیے گا۔